प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरांगनिताय 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 जय गौरांगनिताय जय गौरांगनिताय 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 जय गौरांगनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय राधा माधव कुंज विहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 वनचारि यमुना तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जयो राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जयो राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय जय गौरांग निताय जय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय जय गौरांग निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जयो विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल यूनिवर्स जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शेठ गोस्वामी प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री गौर निताय की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Jagat Guru Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणा नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्री रूपा सनातना भट्ट रघुनाथा श्री जीवा गोपाल भट्टा दास रघुनाथा षट गोस्वामी प्रभुपाद की। Hare Krishna. So today we are all here to hear about a very celebrated pastime. आज हम एक ऐसे लीला के बारे में सुनने वाले हैं जिसका त्योहार हम इस बृहस्पतिवार को मनाएंगे. So we'll celebrate this festival this coming Thursday. What is the name of the festival? Panihati Chida Dahi Mahotsav. It's called Chipped Rice Festival, Flattened Rice Festival. चिड़ा, जिसका नाम फ्लैटन राइस, जिसको हिंदी में चिड़ा बोलते हैं, चिड़वा बोलते हैं. So this is basically a pastime of union of devotee, spiritual master and the Supreme Lord. तो ये एक ऐसी लीला है जो दर्शाता है समागम भक्त का, गुरु का और भगवान का. It's also called Festival of
punishment. दंड महोत्सव. तो हमने तो सुना था वैष्णव पर दुखी दुखी होता है. So we all heard that a Vaishnava is always sad when somebody else is sad. But here is a celebration of a punishment. एक ऐसे दंड को हम त्योहार की तरह मना रहे हैं. So it looks like a contradiction. मतलब किसी को तकलीफ पहुंच रहा है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. So why is it a celebration? We will learn in this pastime. तो 5000 साल पहले चैतन्य प्रभु का आविर्भाव हुआ और उनके साथ वो लेके आए अपने सारे पार्षदों को. कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तनै प्रायर यजंती ही सुमेधसः. तो कृष्ण चैतन्य 500 साल पहले इस धरा भूमि पे अपने लीला करने के लिए आए. उनका लीला का कारण एक अंतरंग कारण था और दूसरा बहिरंग कारण था. बहिरंग कारण था भक्त बन के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को छेड़ना और हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर नगर नगर में पहुंचाना. और अंतरंग कारण था क्योंकि वो स्वयं कृष्णा थे और कृष्णा जानना चाहते थे कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है. और इतना प्रेम वो करती है, जब भी मुझे देखती है इतना आनंद भरित हो जाती है. She becomes full of ecstasy when she sees me, when she serves me. What is that reason that makes her so ecstatic? क्या है कारण जो राधा रानी ऐसे महाभाव में मेरा सेवा करती है? तो उन्होंने पूछा भी, भगवान कृष्णा राधा रानी को यही प्रश्न पूछे, हे राधे आपको मेरी सेवा में इतना क्या आनंद आता है? आप मस्ती में रहते हैं, उन्माद में रहते हैं, तो इसका रहस्य हमसे भी आप थोड़ा शेयर कीजिए. तो राधा रानी हंस के बोलती है, भगवान ये आप नहीं समझेंगे. ओ लॉर्ड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. यू मे बी द सुप्रीम लॉर्ड, पर राधा रानी का प्रेम के बारे में आप शब्दों से समझ नहीं पाएंगे. यदि आपको समझना है, एक ही उपाय है, आपको खुद राधा रानी बनना पड़ेगा. If you become Radha Rani, then you will understand the ecstatic feelings that I feel for you. It cannot be expressed in words. लेकिन भगवान भगवान है, तो बोलते हैं ऐसे ऐसा है, तो फिर आगे आने वाले कलयुग में मैं गौरांग बन के आऊंगा, आपके महाभाव में मैं आऊंगा. I'll come in the body of Krishna. My color will not be that of Krishna. त्विषा अकृष्णम. मेरा भाव आपके भाव रहेगा, तो इसलिए मेरा त्वचा का रंग भी आप गौरांगी हो तो मैं गौरांग बन के आऊंगा. सो राधा कृष्णा का सम्मिलित अवतार चैतन्य महाप्रभु है. और उनके साथ आए सांगो पांग उपांग अस्त्र. तो उनके साथ आए उनके सारे साथी, उपसाथी, फिर उनके अस्त्र. और वो अस्त्र कौन चलाने वाला था? स्वयं महाप्रभु नहीं चलाने वाले थे, उसमें भाग लेने वाले थे. अस्त्र चलाने वाले थे उनके सारे साथी, पार्षद, ये अस्त्र चलाने वाले थे. और ये ऐसा अस्त्र था जो असुर को नहीं मारते. It would not kill the demons. It would kill the demoniac nature of the demons.
तो आसुरी स्वभाव का वो नाश करने के लिए अस्त्र लेके आए थे। क्या अस्त्र है? अस्त्र क्या था? यज्ञ संकीर्तन प्रायर। तो संकीर्तना ये था उनका अस्त्र, और एक ऐसा अस्त्र था कोई भी नहीं छूटने वाला था, कि कलयुग में 90 से 99% सब असुरी स्वभाव के लोग हैं। If you are wanting to feel good, you can think that you are one among the 1% who are not. तो कलयुग के 99% लोग असुरी स्वभाव के लोग हैं। 1% शायद हो सकते हैं जो असुरी स्वभाव नहीं रखते। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस 1% में जुड़ जाइए, अपने आप को समझ लीजिए। एंड हु इज गोइंग टू परफॉर्म दिस संकीर्तना? ये संकीर्तन यज्ञ को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन करेगा? यजंती ही सुमेधसः। वेरी इंटेलिजेंट पीपल ऑफ कलियुगा ओनली विल फॉलो दिस यज्ञ। बाकी को इसका गंध सुगंध भी आएगा नहीं। सो टुडे इफ वी आर ऑल चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, फर्स्ट थिंग इज we can count that we are at least one among the considered intelligent people. Sumedasa. Sumedasa, not because we are personally intelligent. It is not because of our personal intelligence. Our only intelligence has been that we are ready to follow the spiritual master. हमारे गुरु का आदेश को, इस वाक्य को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मानने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा इंटेलिजेंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव नो अदर इंटेलिजेंस। सो इज मेन 6 डिसाइपल्स अपार्ट फ्रॉम नित्यानंद प्रभु जो पार्षद बन के आए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित आदि गौर भक्त वृंदा और अनेक सारे गौर भक्त आए, और फिर उनके साथ आए उनके 6 गोस्वामियां। Who were the 6 Goswamis? The 6 Goswamis were the celebrated gopis and manjaris in Krishna Leela. So they were not ordinary souls. So today we are going to talk about a pastime which involves one of the Goswamis, who later on went to become a Goswami, and his journey of becoming a Goswami. A very interesting pastime. So पानीहाटी एक गांव है, आज के पश्चिम बंगाल में है। So today is West Bengal. Of course at that time it was the undivided Bengal. तो पूरा बंगाल गौड़ देश कहलाता था। तो कलकत्ता से 10 मील उत्तर की तरफ है, और यहाँ पे बहुत साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब आने से पहले एक बौद्ध केंद्र था, a Buddhist center. So Buddhism was very popular in that area of the world. और क्योंकि गंगा हुगली नदी, the Hooghly river was flowing nearby, तो उस समय में जो अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सामान का ट्रांसपोर्टेशन करना था वो नदी के माध्यम से होता था, समुद्र या नदी के माध्यम से। सो इट वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड। तो मर्चेंट्स के लिए एक स्थानीय केंद्र था, एक केंद्र था वो। सो वहाँ पे एक स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस जिसका नाम पेनेती है वो पाया जाता था वहाँ पे, बहुत ही मशहूर था उस समय, इसीलिए इस गांव का नाम पानीहाटी पड़ा। दूसरा कारण पानीहाटी, पानीहाटी का एक और अर्थ आता है जहाँ पे व्यापार होता है वो केंद्र। सो पानीहाटी वाज आल्सो अ सेंटर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मर्चेंट एक्टिविटीज। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद पानीहाटी एक गौड़ीय वैष्णव केंद्र बन गया। इट बिकेम वन ऑफ द मेन सेंटर्स।
ये लीला नित्यानंद प्रभु का हेतु रहित कृपा, कॉजलेस मर्सी दर्शाता है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु द्वापर लीला में बलराम जी थे, कृष्णा के बड़े भाई, और गौर लीला में वो नित्यानंद प्रभु बन के आए हैं। नित्यानंद प्रभु एंड बलरामा आर गुरु तत्व, आदि गुरु। बलरामा और नित्यानंद प्रभु आदि गुरु कहलाते हैं। मतलब सारे गुरुओं का जो आश्रय को जो है, जो आश्रय तत्व है, वो नित्यानंद प्रभु है, बलराम जी हैं। तो ये लीला ज्येष्ठ मास में हुआ। ज्येष्ठ मास इज मई एंड जून, द मंथ्स ऑफ मई एंड जून, अभी वही मास चल रहा है। और शुक्ल पक्ष मतलब द वैक्सिंग मून, मतलब अभी कुछ ही दिनों में पूर्णिमा भी आने वाला है। त्रयोदशी के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे पानीहाटी महामहोत्सव, पानीहाटी चिड़ा महोत्सव। वो दिन है त्रयोदशी, उसके 2 दिन पहले है, दैट मीन्स द डे बिफोर दैट, दैट इज 2 days बिफोर दैट एकादशी है, आने वाला है मंगलवार को। एक स्पेशल एकादशी है। क्या नाम है इस एकादशी का? पांडव निर्जला एकादशी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज नो अदर सिग्निफिकेंस, एटलीस्ट फॉर गौड़ीय वैष्णवास। भीमसेन के लिए वो एक एकादशी था जिसमें साल में एक बार उस एकादशी में वो निर्जल करने वाला था। इसका मतलब दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल दैट वी शुड ऑल फॉलो कि 23 एकादशी हम सब कुछ खाएंगे और 24वें एकादशी जो पानीहाटी का आएगा, मतलब पांडव निर्जल आएगा, उस दिन हम निर्जल एकादशी करेंगे। दिस इज नॉट समथिंग टू बी फॉलोड। सो फॉर अस इट इज अ नॉर्मल एकादशी, बिकॉज व्हाट वी आर कंटिन्यूइंग टू डू इन अदर एकादशीज, बाकी एकादशी में जो हम करते हैं वही इस एकादशी में भी करना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम के निवासी थे। His parents were very rich जमींदार्स। तो उनके पिताजी एक बहुत ही बड़े जमींदार थे। उनका नाम था गोवर्धन मजुमदार, और उनका एक अंकल थे, तो उनका नाम था हिरणमय मजुमदार। तो गोवर्धन मजुमदार और हिरणमय मजुमदार उस प्रदेश का नहीं, शायद पूरे भारतवर्ष का सबसे अमीर जमींदारों में से एक थे। वेरी वेरी रिच एंड ऑपुलेंट। ऐसे परिवार में रघुनाथ का जन्म हुआ। कितने अमीर थे गोवर्धन मजुमदार? उस समय में 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनका आमदनी था। 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं, आज का तुलना में वो अरबों रुपए हो जाएगा। तो और उनका ये मतलब क्या बोलते हैं, इट्स एन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम वाज 12 लाख गोल्ड कॉइन्स। सो दिस वाज द काइंड ऑफ फैमिली दैट रघुनाथ दास गोस्वामी वाज born into. So in his early life, Raghunath Das Goswami became a vairagi. उनको ये जो धन दौलत है उसमें कोई रुचि नहीं था। उनको परिवार में ज़्यादा रुचि नहीं था। He was not interested in any worldly matters. He was not interested in family matters. He was not interested in wealth. He was not interested to enjoy all the good things, so-called good things that could come or that money could buy. क्यों ऐसे बन गए थे? पहले तो द्वापर लीला के वो मंजरी है। सो द्वापर लीला में उनका नाम रति मंजरी is also a combination of रसमंजरी, रति मंजरी एंड भानुमति। इन तीनों का
सम्मिलित अवतार होके रघुनाथ दास आए हैं गौर लीला में। So because of this past that he had, so he had the good fortune of associating in his early life with one of the great पार्षद ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु के एक महान पार्षद के वो साथी बन गए थे छोटे ही आयु में, क्योंकि गोवर्धन मजुमदार और हिरणमय मजुमदार भी भक्त थे। सो दे वर फॉलोअर्स ऑफ अद्वैता आचार्य, एंड अद्वैता आचार्य के घर शांतिपुर में आना जाना था उनका। सो दे यूज्ड टू ऑफन विजिट अद्वैता आचार्य's house from Saptagram and take association of Advaita Acharya. And one of the close confidants of Advaita Acharya was Haridas Thakur. हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं। तो उनका भी वहां आना जाना था, क्योंकि वो अद्वैत आचार्य को बहुत मानते थे, अपने गुरु शिक्षा गुरु मानते थे वो। तो लगभग वहीं पे रहते थे वो। तो उस समय रघुनाथ जब छोटा बच्चा था, उनका हरिदास ठाकुर से संपर्क हुआ, तो उनका संग प्राप्त हुआ उनको। और ऐसे शुद्ध भक्त का जब संग प्राप्त होता है तो वैराग्य विद्या दोनों साथ में आएगा। सो रघुनाथ इन इज वेरी अर्ली लाइफ showed all the signs of a pure devotee. एक शुद्ध भक्त का उन्होंने लक्षण दिखाया। So he was very much detached from all the worldly pleasures. तो इससे गोवर्धन मजुमदार और उनकी पत्नी बहुत चिंतित थे। जब वो छोटा बच्चा था, जब वो भजन करता था, कीर्तन करता था, भक्तों का संग करता था, माँ बाप को बहुत अच्छा लगता था। So the story of all the brahmacharis of ISKCON. छोटे आयु में जब वो भक्ति करते हैं तो माँ बाप तालियां बजाते हैं। बड़े होते होते उनको आतंक होने लगता है, ये हमें छोड़ के चला जाएगा, संन्यास ले लेगा, मंदिर ज्वाइन कर लेगा। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मंदिर ज्वाइन करने का बात आता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो रघुनाथ का भी स्थिति वही था। हमेशा महाप्रभु हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करता था, हमेशा भक्तों के संग रहता था, कोई रुचि नहीं है दौलत में, धन में। तो माँ बाप चिंतित होने लगे, सन्यासी बन जाएगा, हमें छोड़ के जाएगा, हमारा बुढ़ापे का लाठी तो हमसे बिछड़ जाएगा। और हिरणमय मजुमदार का भी कोई वारिस नहीं था। देयर वाज नो डिसेंडेंट ऑफ हिरणमय मजुमदार। सो एक लाडला एक ही था, रघुनाथ। और रघुनाथ का स्थिति ये था। और इसलिए जब वो युवक बनने लगा तो सीसीटीवी कैमरा हमेशा उसके ऊपर रहता था। माँ बाप के आंख दृष्टि हमेशा उनके ऊपर रहता था। और उसके अलावा उनके लिए प्रत्येक सिक्योरिटी गार्ड्स उनके माँ बाप ने रखा था। क्यों ऐसे किया था? जब चैतन्य महाप्रभु कटवा से सन्यास लेके आए थे तो वो शांतिपुर आए थे। और शांतिपुर उस समय रघुनाथ वहां पे थे। उस समय वो रघुनाथ थे, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं थे। और चैतन्य महाप्रभु से वो मिलके बहुत ही प्रभावित हो गए, वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय चैतन्य महाप्रभु, हिज डिमेनर, हिज प्योरिटी। ऑफ कोर्स हिज सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल अट्रैक्टिव। गौरंग महाप्रभु बहुत ही आकर्षित हो गए। तो जब उनके जाने का समय आया तो रघुनाथ गए उनके पास और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे घर गृहस्थी में कोई रुचि नहीं है, मुझे आप अपने साथ लेके जाइए, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। तो महाप्रभु हंस के बोले उस समय, यू आर टू यंग राइट नाउ, अभी समय नहीं है, आप वापस जाइए अपने माँ बाप के पास, वक्त आएगा आपका ये इच्छा पूर्ण होगा। ये आश्वासन देके उन्होंने रघुनाथ को वापस भेज दिया। तो रघुनाथ जी महाप्रभु के बात मान के वापस वो घर चले गए और दैन्य कार्य में वो लग गए।
फिर दूसरी बार महाप्रभु से संपर्क कब हुआ? जब महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे। हम सब जानते हैं, वी ऑल नो हाउ नित्यानंद प्रभु cheated him, hoodwinked him. He didn't want him to go to वृंदावन, क्योंकि उनकी माँ चैतन्य महाप्रभु की माता शची माता नहीं चाहती थी कि वो बंगाल से दूर जाए। संन्यास तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अपने से दूर जाने में उनकी सहमति नहीं थी। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो जगन्नाथपुरी में बस जाए, और ताकि वो जब चाहे उनको देखने के लिए आ सकती है और उनका समाचार उन तक पहुंच जाता। वृंदावन जाएंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये व्यक्त करने से पहले नित्यानंद प्रभु को व्यक्त कर चुके थे, और नित्यानंद प्रभु ने इसलिए उपाय से चैतन्य महाप्रभु को भटका दिया। वृंदावन जाने वाले चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर वापस वो लेके आए। वहां से फिर से रघुनाथ जी का उनसे संपर्क हुआ। फिर वही दरख्वास्त, सेम रिक्वेस्ट, महाप्रभु प्लीज हैव योर मर्सी ऑन मी, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, आई वांट टू बी योर एसोसिएट ऑल माय लाइफ, प्लीज ग्रांट मी दिस विश। अगेन चैतन्य महाप्रभु refused. He said, this is not the time. अभी वक्त नहीं है, आप वापस जाइए। और अभी मैंने सुना कि आपने शादी भी कर लिया है, क्योंकि उस दौरान उनके माँ बाप ने उनको उनका विवाह कर दिया। क्या सोच के? विवाह के बंधन में रहेगा तो घर गृहस्थी में रुचि आएगा, और फिर वो सामान्य मनुष्य की तरह हमारे साथ रहेगा। He'll be with us. With this hope they got him married also. ऐसे मतलब उनकी पत्नी थी, one of the most beautiful women that existed on earth at that time. उस समय के अति सुंदरी थी उनकी पत्नी, और ये जानबूझ के एक सुंदरी और एक सुसंस्कृत पत्नी से विवाह उन्होंने कराया, और आशा किया कि अब ये बंद गया, सुंदर पत्नी को छोड़ के कौन जाएगा। धन राशि में तो रुचि नहीं है, लेकिन अब सुंदर पत्नी के कारण तो रुक जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होना था। तो उनको सुंदर पत्नी में भी आसक्ति नहीं था। तो महाप्रभु ये जानते हुए उनको बोला, आपका अभी नया नया शादी हुआ है, तो आपको घर गृहस्थी में ध्यान देना है, एक गृहस्थ का धर्म है। आप जाइए, और आप, मुझे पता है आप एक शुद्ध भक्त हो, आप चाहते हो कि आप मेरे साथ आए, लेकिन अभी समय नहीं आया है। आप वापस जाइए और ऐसे रहिए परिवार के साथ कि उनको ना लगे कि आप सन्यासी बन के चले जाएंगे। सो जो जो कार्य एक गृहस्थ को करना चाहिए आसक्ति से कीजिए। जस्ट लाइक अ वुमन हु हैज गॉट अ पैरामोर, एक शादीशुदा औरत जिसका एक अफेयर चल रहा है, तो हमेशा वो उसके बारे में सोचती रहती है, घर का सारा काम अच्छी तरह करेगी। वाई? सो दैट द हस्बैंड डजंट डाउट हर। सो आपका भी स्थिति यही है। तो आपको घर गृहस्थी में ध्यान देना है, और मेरे दिए हुए मंत्र, हरे कृष्णा मंत्रों को आप जाप करते रहिए, और समय आएगा आप मेरे पास आएंगे। सो इफ वी लुक एट दिस, we will sometimes feel, why is Mahaprabhu not accepting Raghunatha? What is his fault? क्या दोष है उनमें? शुद्ध भक्त है, हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहे हैं, वैराग्य आ चुका है, ज्ञानी है, हमेशा भक्त के संग में रहते, whatever a pure devotee should have. He has all the qualities. Yet Mahaprabhu is not accepting him. He is not awarding him his association. What is the reason for this? We will talk about it later. तो एक दिन इस दौरान रघुनाथ को पता चला कि नित्यानंद प्रभु पास के गांव पानीहट्टी में आ चुके हैं अपने सारे साथियों के साथ, और वहां पे राघव पंडित प्रभु के घर वो रुके हुए हैं।
तो उन्होंने सोचा चैतन्य महाप्रभु के रूट काम नहीं कर रहा है, तो मुझे नित्यानंद प्रभु के रूट लेना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु फॉर सम रीजन इज नॉट बीइंग मर्सीफुल ऑन मी, मे बी नित्यानंद प्रभु विल बी मर्सीफुल ऑन मी। और मैंने सुना है चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, लेकिन उनसे भी कृपालु नित्यानंद प्रभु है, तो इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा। तो रघुनाथ अपने सारे ऑफ कोर्स पहरे के साथ, माँ बाप तो उनको ऐसे ही भेजने वाले नहीं थे, सो पिताजी का उन्होंने परमिशन लिया। पिताजी को कुछ डाउट नहीं हुआ क्योंकि वो घर गृहस्थी अभी संभाल रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो एक पहरे के साथ, कुछ सेवकों के साथ रघुनाथ जी को उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए परमिशन दे दिया। नित्यानंद प्रभु जितने जल्दी हो सके आए पानी हटी में, और पानी हटी में एक जगह है, आज भी है, एक बरगद के पेड़, बैनियन ट्री, उनके नीचे एक शिला के ऊपर रघुनाथ जी नित्यानंद प्रभु बैठे थे उनके साथियों के साथ। अच्छे जोर जोर से कीर्तन चल रहा था, और दूर से रघुनाथ नित्यानंद प्रभु को देखे, और उन्होंने सोचा नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए तो मैं आ गया, पर मैं कैसे मिलूं? हाउ विल आई मीट हिम? आई एम सच अ फॉलन सोल। मैं कितना पतित हूं, ऐसे महान व्यक्ति के समक्ष मैं कैसे जाऊंगा? हाउ विल आई गो इवन नियर हिम? सो फ्रॉम फार रघुनाथ ऑफर्ड दंडवत्स, तो उन्होंने दंडवत्स किया दूर से नित्यानंद प्रभु को। और जैसे ही उन्होंने दंडवत्स किया तो नित्यानंद प्रभु के जो साथी थे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दिखाया, वो देखिए गोवर्धन मजुमदार का पुत्र आपको दूर से दंडवत कर रहा है। The son of Govardhan Majumdar, because Govardhan Majumdar was a very famous Majumdar, very famous Zamindar. उस समय के I told you, not just in Bengal, he was the richest in Bharatavarsha, one of the richest. So he was very famous also. So उसका नाम रघुनाथ है, वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। तो नित्यानंद प्रभु सब जानते थे, तो उन्होंने वहां से दूर से रघुनाथ को बुलाया। हे रघुनाथ, चोर की बाती वहां खड़ा है, चोर की बाती मेरा आशीर्वाद लेना चाहता है। तो उनके साथियों को उन्होंने बोला जाओ उसको लेके आओ मेरे पास। So they went and bought Raghunath Das Goswami close to Nityananda Prabhu, and Raghunath again paid obeisances. तो नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद देने के रूप उनके सर के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर अपने चरण कमल को रख दिया। So that Nitai Pada Kamala, which is Koti Chandra Sushitala, millions of moons, the soothing rays of millions of moons that even Brahma, Shiva are hankering for, and still they have not got it. वैसे चरण का आश्रय खुद नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को सौंप रहे हैं। और फिर से उन्होंने बोला क्योंकि आपने चोरी किया है, बिकॉज यू आर ए थीफ, आपको इसका दंड मिलेगा। यू विल गेट पनिशमेंट। चोरी किया है तो आपको दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दंड ये है आपका कि ये मेरे सारे साथियों को आप चिड़ा दही का महोत्सव कराएंगे, सबको चिड़ा दही का प्रसादम खिलाएंगे। सो रघुनाथ जी was very happy listening to this. किसी और को बोलते तो सोचते इतने सारे लोगों को प्रसादम खिलाना है, बजट का इश्यू हो जाएगा। But रघुनाथ दास गोस्वामी was very happy for this opportunity. तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इतने सारे लोग हैं और मैं अभी यहाँ वस्तु कैसे लेके आऊंगा, चिड़ा दही का प्रबंध कैसे करूंगा। बस उन्होंने संकल्प कर दिया, उन्होंने अपने साथियों को भेजा, जाओ आसपास के गांव में जितने भी चिड़ा है, द फ्लैटन राइस,
poha, the very famous poha which even Sudama carried to Dwaraka. The dry flattened rice, वो इकट्ठा कीजिए, दही जितना होगा इकट्ठा कीजिए, शक्कर, केला, ये सब लेके आइए। फिर साथ में वो लेके आए दूध और ड्राई फ्रूट्स, ये सब लेके आके फिर उन्होंने 2 बड़े मटके में, तो पहले तो उन्होंने चिड़ा को गर्म दूध में भिगो दिया so that it becomes soft, and after that they made it into 2 parts. एक भाग को उन्होंने दही में डुबोया, दही में भिगोया और उसमें केला और शक्कर मिला लिया, और दूसरे एक बड़े मटके में कंडेंस्ड मिल्क यू कैन से रबड़ी जैसे, तो रबड़ी जैसे स्वीट वो उसमें था, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स उन्होंने डाला और केला उसमें डाला और उसमें उन्होंने चिड़ा को भिगो दिया। दो तरह का प्रिपरेशंस बन गया। वन बेस वाज कंडेंस्ड मिल्क, अनदर बेस वाज कर्ड्स, and the ingredient common to both of them was chida. That is the poha, the dry flattened rice. So we all will get this opportunity to do the same thing, to offer chida dahi or chida and condensed milk as you will be allocated. You all been told by your preachers, आपके preachers आपको बता चुके हैं कि हम भी चिड़ा दही महोत्सव मनाएंगे 22 तारीख को त्रयोदशी के दिन, और आप सब के लिए एक मौका है ये चिड़ा दही का प्रिपरेशन करके यहाँ लेके आने का, और ये भगवान को चैतन्य गौर निताय को अर्पित होगा. It will be offered to Gaura and Nitai. So it's a great opportunity for all of you. And we are going to make it more interesting by adding more flavors. So last time, if I remember, we did more than 100 different flavors. तो 100 से ज़्यादा flavors हमने किया था. इस बार we are trying to increase that number, and all of you should participate in this festival. So coming back to what was happening at Panihati at that time. So all the devotees, उसके बाद सारे वहाँ से जो भक्त थे उनको 2 छोटे छोटे मटके मिले. एक में था दही वाला चिड़ा और एक में था रबड़ी वाला कंडेंस मिल्क वाला चिड़ा दही, चिड़ा प्रिपरेशन. तो सबको 2-2 मिलने लगे. और ये सुन के कि यहाँ पे एक महोत्सव हो रहा है, जहाँ पे प्रवचन हो रहा है कम लोग रहेंगे, जहाँ पे कीर्तन होगा थोड़ा ज्यादा लोग आएंगे, जहाँ पे प्रसादम है वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आएंगे. तो जब लोगों को पता चला कि प्रसादम वितरण हो रहा है, तो एक जगह है मुफ्त में प्रसादम वितरण हो रहा है, नित्यानंद प्रभु जी भी वही है, और एक अमीर लड़का सबको बांट रहा है, चलिए प्रसादम लेने हम भी जाएंगे. पूरा गांव का गांव आ गया. फिर बाजू वाला जो गांव था वो सारे लोग आ गए, प्रदेश के लोग भी आ गए. तो न जाने कहां से भक्त आने लगे, प्रमुख भक्त चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि उनको पता था अब यहाँ पे कुछ धमाका होने वाला है, नित्यानंद प्रभु कुछ करने वाले हैं यहाँ पे. So everybody came to that place, and all of them, each and every one of them were given one pot of chida dahi and chida and condensed milk. और इतने लोग इकट्ठा हो गए, बरगद के पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु, उनके आसपास उनके सारे सहचरिया, बरगद के पेड़ के ऊपर लोग चढ़ने लगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है. पेड़ के ऊपर लोग बैठने लगे, वहां पे भी जगह नहीं है. तो गंगा तट, क्योंकि पानीहाटी महोत्सव गंगा तट पे हो रहा था, तो गंगा तट पे जाके बैठ गए. वहां पे भी जगह क्लोज हो गया, गंगा में चले गए लोग. दे वेंट इनसाइड रिवर गंगा, क्योंकि जगह है ही नहीं. तो गंगा नदी के अंदर जाके चिड़ा दही का आनंद वो ले रहे हैं. तो आप सोच सकते हैं कितने लोग इकट्ठा हो गए. लेकिन वो दैट कैपेसिटी Raghunath had because he was the son of a rich zamindar, and Nityananda Prabhu ordained it. See, Nityananda Prabhu could have asked for
अरे ये तो करोड़पति का बेटा है, तो भाई चिड़ा दही, पनीर मंगवाएंगे, रसगुल्ला मंगवाएंगे, जामुन मंगवाएंगे, संदेश मंगवाएंगे. Again, the message here is, it is not the richness of food, it is the bhava in which you are going to offer. And chida is readily available. कुछ प्रिपरेशन तो है ही नहीं, कुछ कुकिंग तो था ही नहीं. दही मिलेगा, दूध को उबालना है, रबड़ी जैसे थिक बनाना है, फिर ड्राई फ्रूट्स, केला, ये सब डालना है उसके अंदर. तो it was a simple preparation. So even though the preparation was simple, it was given with a lot of heartfelt wishes by Raghunath Goswami. तो रघुनाथ दास तो अपने पूरे हृदय पूर्वक उन्होंने वैष्णवों का सेवा किया. हर वैष्णव को उनका चिड़ा दही का मटका और रबड़ी का मटका उनको मिला था. तो उसी समय राघव पंडित भी आ गए. राघव पंडित के घर आए थे नित्यानंद प्रभु. तो बोल रहे थे, हे भगवान आप क्या कर रहे हैं, आपकी दावत मेरे घर में है, मैं और मेरी बहन दमयंती आपके लिए इतने इतने अच्छे पकवान बना चुके हैं और आप यहाँ पे चिड़ा दही खा रहे हैं, हमें तो आपने धोखा दे दिया. तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, राघव आपको पता होना चाहिए कि मैं एक ग्वाल बाल हूं. आई वॉज अ काउहर्ड पर्सन इन माई प्रीवियस इनकारनेशन. मुझे अच्छा लगता है कि नदी किनारे यहाँ मेरे सहचरियों के साथ बैठ के प्रसाद पाना, व्रज लीला की जैसे मैं यहाँ पे फिर से लीला दोहराना चाहता हूँ. उस समय गंगा यमुना बन गई और वो प्रदेश वृंदावन बन गया. वैसे गौड़ देश और वृंदावन में कोई फर्क है ही नहीं. तो साक्षात वृंदावन बन गया और गंगा जी यमुना जैसे हो गई और उनका लीला आगे बढ़ा. तो उस समय राघव पंडित को उन्होंने बोला कि आप जाइए, आपके घर हम दावत शाम को आके वो दावत को हम ग्रहण करेंगे. सो राघव पंडित एंड दमयंती also participated in Panihati festival. And as the devotees were sitting all around, Nityananda Prabhu invoked with prayers चैतन्य महाप्रभु. तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने आह्वान किया प्रार्थना करके और चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए. सबको नहीं दिखे, कुछ ही लोगों को दिखे, बहुत ही कम लोगों को दिखे और नित्यानंद प्रभु उनको दिखा रहे थे, देखिए आपका संकीर्तन आंदोलन, आपका प्रसादम वितरण प्रोग्राम कैसे चल रहा है, ये देखिए आपके भक्त रघुनाथ कैसे सारे वैष्णवों का सेवा कर रहे हैं. क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते थे कि 2 बार चैतन्य महाप्रभु वापस भेज चुके हैं और उसके बाद भी रघुनाथ अनेक बार घर से भागने की कोशिश किया, लेकिन पहरेदार उनको कहीं ना कहीं से पकड़ के वापस लेके आते थे. चैतन्य महाप्रभु तक वह पहुंचते ही नहीं. तो नित्यानंद प्रभु wanted to show, look, your devotee is serving the Vaishnavas and here is your wish that is fulfilled. Prasadam Vitaran is happening in a great scale. And he went around, he and Chaitanya Mahaprabhu went around hand in hand. तो हर एक की मटके में नित्यानंद प्रभु हाथ डालते थे, एक थोड़ा उनके मटके से चिड़ा उठाते थे और चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डालते थे. और चैतन्य महाप्रभु भी हंस के उल्लास से वो भी उसी मटके से एक पिंच उठाते थे और नित्यानंद प्रभु के मुंह में डालते थे. तो हर एक के मटके से थोड़ा थोड़ा नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने प्रसादम ग्रहण किया, यू कैन से भोग ग्रहण किया. एंड दे डांस्ड इन एक्सटेसी throughout the afternoon and they blessed Raghunath Das Goswami. And then Chaitanya Mahaprabhu wound up that pastime and he went back, and in the evening all of them then dispersed, and in the night they all went to Raghav Pandit ji के घर, वहाँ पे भी दावत था. और उसके बाद नित्यानंद प्रभु अभी पहले तो प्रसाद खिला दिया. तो वैष्णवों को प्रसाद खिलाना, it is one of the foremost duties of a devotee. तो भंडारा
जो कराते हैं ना भक्तों के लिए, जो भंडारा कराते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल कि सबको वैष्णव भोजन कराना चाहिए। लेकिन जब भोजन किसी को हम कराते हैं तो हमारे पाप भी थोड़ा थोड़ा उनके पास चले जाता है। डरने की बात नहीं है, ये केवल नॉन डिवोटीज के साथ होता है। डिवोटीज को कोई पाप का लेपन नहीं होता है, because in fact devotees when they honor prasadam they get purified and they purify the soul that has offered them prasadam. So we should not be scared of offering bhandara or Vaishnava bhojan. Otherwise in the outside world, why we must not take invitation of people who are non-devotees? This is the reason. अभक्तों के घर हम जाके दावत खाएंगे, उनके पाप में थोड़ा हिस्सा हमें लेके वापस आना पड़ेगा। तो दैट इज द व्हाट यू कैन से, दैट इज द फाइन यू हैव टू पे। आपको वो फाइन पे करना पड़ेगा, उसके पाप तो थोड़ा आपको लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए वेद शास्त्र में एक और विधान है कि भोजन के बाद दक्षिणा भी देना चाहिए। तो दक्षिणा देने से जो उसका पाप है, इसका पाप है, सब पाप मिट जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड द वैष्णवास एंड गिव देम दक्षिणा सो दैट दे बिकम fully free of sins, the one who is offering the bhojan. And same thing Nityananda Raghunath Das Goswami also did. राघव पंडित के घर के दावत के बाद फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाया, सारे वहाँ पे जो मौजूद थे वैष्णवों का, उन्होंने एक पट्टी बनाया, सबका नाम था और उसमें लिखा था कि किसको कितना स्वर्ण मुद्रा दान देना चाहिए। तो उतने मात्रा में स्वर्ण मुद्रा उन्होंने राघव पंडित को दिए और उन्होंने बोला जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा आप नित्यानंद प्रभु को इतना दे दीजिए और फिर आप इतना रख लीजिए और बाकी सारे जो वैष्णव हैं उनका नाम मैंने लिखा है और उनके लिए कितना दक्षिणा देना चाहिए वो भी मैंने लिखा है, आप उनको दे दीजिए। इस शास्त्र में प्रमाण करके उन्होंने ऐसा किया था। इट वॉज नॉट विम्सिकल। दान भी आदमी को देख के करना चाहिए। दान और दक्षिणा should not be whimsical. It must be done to the right person in the right place in the right amount, not in an extravagant manner to the wrong person. ऐसा नहीं है कि मैंने उसको 10 रुपए दे दिया, मेरा काम हो गया, वो उससे कुछ भी करेगा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। नो, अगर आपने किसी को दक्षिणा दे दिया, अगर आप गलत व्यक्ति को दान दे दिया और वो व्यक्ति उस पैसे से गलत दुर्व्यवहार कर लिया, जाके उसने एक पैकेट अल्कोहल ले लिया, तो उसके पाप का भागी आप भी बन जाएंगे। जितना पाप उसको लगेगा उतना पाप जो देने वाला है उसको भी लगेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज सेइंग दैट मैंने तो दिया था अच्छे विचार करके, उसने दुरुपयोग किया। तो even when I give dakshina, I must see whether this person is capable of utilizing it properly. So भगवान कभी किसी को पॉवर्टी में रखता है, वो किसी कारण रखता है। दान दक्षिणा कीजिए, बट इट मस्ट बी डन अंडर गाइडेंस। तो इसीलिए आप गुरु के मुखेन जब करेंगे, गुरु कर रहे लोक कल्याण का काम, अक्षय पात्र में आप दान देंगे, मंदिर में आप दान देंगे, मंदिर के नीचे प्रसादम वितरण हो रहा है, रोज खिचड़ी वितरण तो हो ही रहा है, जो भी आ रहा है सबको मिल रहा है, आपके दक्षिणा के पैसे से ही तो होगा। तो this is what we must remember. So you must give dakshina to your guru and the guru will do the loka kalyan. We are not capable of doing loka kalyan, क्योंकि हम लोक कल्याण करना भी चाहेंगे तो उसमें स्वार्थ रहेगा, उसमें ये रहेगा इसमें मुझे क्या मिलेगा, what will I get from this. तो ये स्वार्थ में ही हम देंगे और जिसको आप दे रहे हो पता नहीं वो क्या करेगा। लेकिन मंदिर से खिचड़ी प्रसादम मिलेगा, चाहे वो कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रसादम वो ग्रहण करके जाएगा और प्रसादम का जो इफेक्ट है उसको मिल जाएगा। सो व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पास्ट टाइम? क्विकली वी विल वाइंड अप।
So, lessons to learn from this particular pastime. तो पहला लेसन है, Lord's punishment is also His mercy. क्यों? Because the next day, Raghunatha went again to the same place. Nityananda Prabhu was sitting in the same place under that banyan tree. And then he went to him and he begged to him. I have tried multiple times to go and get surrender to Chaitanya Mahaprabhu. बहुत बार मैंने कोशिश किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने खुद मुझे वापस भेज दिया. और कुछ समय ऐसे हुआ कि मैं पहुंच ही नहीं पाया. मैं समझ गया क्यों. तो नित्यानंद प्रभु हंस के बोलते थे, हंस के बोले, that is why I called you a thief. One is because you were trying to bow down to me from a distance and trying to steal my mercy. You should come close to me and pay obeisances to me and take my mercy. So that is how we offer obeisances to Vaishnava. पहले दूर से जब देखते हैं दंडवत कर देना चाहिए, फिर पास में जाना चाहिए, और पास जाते वक्त अगर उस वैष्णव आपको नहीं देखे हैं और उस वक्त देख रहे हैं, फिर से दंडवत करना चाहिए. पहले नहीं देखे थे, फिर आप पहुंच रहे हो, देख रहे हैं, फिर दंडवत करना चाहिए. फिर उसके बाद उनके पास जाके पूर्ण दंडवत करना चाहिए. दिस इज द वे वी मस्ट pay dandavats, obeisances to a devotee or a Vaishnava. So, and Nityananda Prabhu made him do that. From far he was offering obeisances, he called him closer, made him offer obeisances, and kept his lotus feet on his head as a blessing. और नित्यानंद प्रभु थे, आप चोर इसलिए भी थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का दया वो मेरा प्रॉपर्टी है. The mercy of Lord Chaitanya is my property. वो चैतन्य महाप्रभु का प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपको नहीं दे सकते. So the Krishna is the property of devotees. That's why the Vaishnava prayer says, you are the owner of Krishna. You can give me Krishna. Krishna dite paro. आप कृष्णा का मालिक हो. You are the owner of him. You can give Krishna. Krishna cannot give himself. Mercy of Krishna, Krishna cannot give himself. Through a devotee, it has to be given. And नित्यानंद प्रभु तो उनको रघुनाथ जी को बताए कि आप जाके डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु से दया का भीख मांग रहे हैं, कैसे मिलेगा? मेरे द्वारा जाना चाहिए, तभी आपको मिलेगा. So Nityananda Prabhu is the route to get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. And how to get the mercy of Nityananda Prabhu? What did Nityananda Prabhu do? Nityananda Prabhu made him serve all the Vaishnavas. तो नित्यानंद प्रभु का अगर हमें दया चाहिए तो वैष्णवों का सेवा करना चाहिए. जो नित्यानंद प्रभु के अनुयायी है, फॉलोअर है, उनका सेवा करना चाहिए. We have to approach Nityananda Prabhu through the devotees of our Guru, through our Guru and the devotees of our Guru. तो जब हमारे गुरु का जो फॉलोअर से संतुष्ट हो जाएंगे, गुरु संतुष्ट हो जाएंगे. गुरु जब संतुष्ट हो जाएंगे, वो हमें नित्यानंद प्रभु तक लेके जाएंगे और नित्यानंद प्रभु हमें चैतन्य महाप्रभु तक लेके जाएंगे. Same thing with Krishna's route. You cannot directly go to Krishna. So that's why the best route is Radhe Radhe, Radha Rani. So she's the best bet to gain Krishna. And how will you get Radha Rani? गोपियों का तृप्त करके, गोपियों को तृप्त करके. गोपियां कब तृप्त होंगे? मंजरी जब तृप्त होंगे. मंजरी कब तृप्त होंगे? जब गुरु परंपरा के आचार्य तृप्त होंगे. सारे आचार्य कब तृप्त होंगे? जब शीला प्रभुपाद तृप्त होंगे. शीला प्रभुपाद कब तृप्त होंगे? जब आप सब मिलके एकजुट रहेंगे. परस्पर बोधयंता और सेवा, परस्पर आप सेवा कर रहे हो, एक दूसरे का, वैष्णवों का सेवा कर रहे हो, तो ये देख के गुरु प्रसन्न हो जाते हैं. सबके ऊपर वो आशीर्वाद बरसाएंगे. So this is the lesson we are learning. So without mercy of Guru, we cannot obtain Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. And spiritual master and the Lord are always looking at us. हमको देखते रहते हैं. हमारे हृदय के अंदर जो इच्छा है उनको पता है, लेकिन उनको पता भी है कि कब देना है.
इस वक्त देंगे तो ये गवा देगा, समय आएगा जब वो becomes qualified, then he will be able to handle it, then they will give, not that they don't want to give. तो चैतन्य महाप्रभु भी इसीलिए वापस भेजे थे रघुनाथ को, क्योंकि वो सीधा सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास जाने वाले थे। तो उन्होंने भी दर्शाया कि जब नित्यानंद प्रभु के साथ आप आएंगे आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो जब नित्यानंद प्रभु वैष्णवों का आशीर्वाद उन्होंने दिलाया, तो अगले दिन जब पहुंचे तो सब उन्होंने बता दिया। तो नित्यानंद प्रभु बोले मैं सब जानता हूं। तो उन्होंने सारे वैष्णवों को उन्होंने आदेश दे दिया, रघुनाथ का ये इच्छा है आप सबको आशीर्वाद देना है कि उनको जल्द से जल्द चैतन्य महाप्रभु का संग मिले और आशीर्वाद मिले। So when all the Vaishnavas blessed him, then he got the mercy. So this is the lesson that we are learning. So this is the significance of why he was called a thief and how we will all be thieves if we are going to approach Chaitanya Mahaprabhu or Krishna directly. So I'll end this saying 5 qualities of Raghunath Das Goswami which we learned here, which everybody should have, and that is going to be pleasing to spiritual master. One is detachment, completely detached. Vairagya था, फिर determined, दृढ़ संकल्प, वापस भेजते रहे लेकिन उन्होंने धृति नहीं खोया, बार बार उन्होंने कोशिश किया। फिर हम ह्यूमिलिटी, दैन्य भाव, उन्होंने ये नहीं बोला मैं करोड़पति का बेटा हूं, सब छोड़ के आने वाला हूं, आप मुझे सेवा नहीं दे रहे हो, ऐसे उन्होंने डिमांड नहीं किया। वापस भेजा तो वापस चले गए और बेग किया मर्सी के लिए, डिडंट डिमांड मर्सी, सो सरेंडर्ड, was completely surrendered. That's another quality. He was fully surrendered, and finally he did seva to Vaishnavas. Vaishnava seva उन्होंने किया. By this route we can all please Prabhupada and we can all make our life perfect and go back to Krishna. So thank you very much for patiently listening to me. Not one of the best speakers, but sometimes you have to tolerate me. If there are any questions, you can ask. Otherwise, we will do chanting. We have time for chanting. Hari Bol. Okay. Hare Krishna. Please give one mic to Prabhu. So we'll take just 1 or 2 questions. I've already run extra time. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान का नाम एकांत में लेना ज्यादा बेहतर है कि ग्रुप में लेना ज्यादा अच्छा है? भगवान का नाम एकांत में लेना अच्छा है कि ग्रुप में लेना अच्छा है? भगवान का नाम हमें भक्तों के संग में लेना चाहिए, बिकॉज एकांत में वी आर नॉट क्वालिफाइड राइट नाउ टू कॉन्सेंट्रेट अवर माइंड। तो मन एक बंदर की तरह है, वो कभी इस शाखा पे कभी उस शाखा पे उस डाली पे रहता है और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम वहां से चले गए। मतलब चैंटिंग फिंगर से चल रहा है लेकिन मन भटक गया, कहीं चला गया और देखिए देखिए 16 माला खत्म भी हो जाएगा। सो बट व्हेन वी आर विद डिवोटीज, हम भक्तों को देख रहे, वो जपा कर रहे, सो इट्स रीइंफोर्सिंग अस, जपा करो, क्योंकि वो भी जपा कर रहे, वो भी मतलब मंदिर में कर रहे, सो दैट एसोसिएशन इज वेरी पावरफुल। सो वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू शुड ऑलवेज चैंट अलॉन्ग विद डिवोटीज। तो प्रश्न ये होगा, अगर मैं अकेला रहता हूं तो क्या करूं? इतना भी अकेले नहीं है कि हम कोई वन में हैं, कहीं ना कहीं कोई भक्त का संग तो मिल ही जाए। इवन इफ विथ योर ओन फैमिली मेंबर्स, 1-2 तो जपा करते होंगे, उनके साथ कर सकते हो, आपके नेबर्स हो सकते हैं। तो बेटर इज इफ द टेम्पल इज क्लोज बाय, प्लीज कम टू द टेम्पल एंड चैंट अर्ली इन द मॉर्निंग। मंगलारती अटेंड कीजिए सुबह सुबह। लेट द स्टार्ट ऑफ द डे बी विद द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड एंड देन चैंट हरे कृष्ण मंत्र, डू योर नंबर ऑफ राउंड्स हियर एंड गो बैक। दैट शुड बी द प्रिंसिपल। ओके, one more question, last question we'll take and we'll chant. हरे
Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। Is Maim Japa so effective as it's chanted loudly? Chanting silently and chanting loudly. Yeah. Yeah. There are a lot of mantras that have to be chanted silently. But the mantra that is given to you is a mantra which is effective by sound vibration. उसका प्रभाव ही शब्द के थ्रू है. So you have to create that vibration. आपको सुनना चाहिए. So इतने loudly करना चाहिए जितना आप सुन सको. See, if me and my wife both are chanting together, then will it be as effective? Or Yes, that is called Sankirtan. जपा आपको you should do it separately. साथ में मतलब ये नहीं कि साथ में बैठ के आप रिदम में कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप शायद फास्ट चैंटिंग करते हैं, आपके वाइफ स्लो चैंटिंग करते हैं, अपने अपने पेस में कर सकते हैं. लेकिन जब साथ में रह के करेंगे तो दैट व्हाट इज दैट सैंक्टिटी इज मेंटेन्ड. सो यू विल बिकम मोर सीरियस. बट जो आप बोल रहे हो साथ में इन यूनिसन, वो संकीर्तन हो जाएगा. तो वो कीर्तन करेंगे साथ में. दैट वी कैन ऑलवेज डू दैट. वी आर ऑल गोइंग टू डू नाउ व्हेन वी गो डाउन शयन आरती में हम संकीर्तन करेंगे. अभी हम जो करेंगे जपा करेंगे, जितना मात्रा में हमें सुनना चाहिए उतना लाउडली हम चैंट करेंगे. Thank you, Prabhuji. So we'll start chanting. Will we be able to chant the complete round? Hare Krishna. Full round, half round. So you can indicate to me where I have to stop. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. So we'll chant only 18 times. 18 times we'll chant Hare Krishna mantra together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Nityananda Prabhu ki, Raghunath Das Goswami ki,
जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, पानी हाटी चिड़ादही महामहोत्सव की। Hare Krishna. So we ended the session at 7:30 because we have some elaborate announcements to make about the upcoming festival, Vyasa Puja offering, and also you'll have the opportunity to take the pots for a Chidadahi. So Hari Bol, Hare Krishna. So you can take over with the announcements. हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। आज आपने पानी हाटी चिड़ा दही महोत्सव के बारे में बहुत अच्छे विस्तार से समझाया। आई थिंक मैं इसमें सोचता हूँ कि आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा इस महोत्सव के बारे में, शायद। हाँ, पहली बार शायद आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने इसमें। तो ये काफ़ी सजा में मज़ा, सजा था लेकिन सब लोगों ने मज़ा किया, है ना। तो आप लोग भी इसमें भाग लीजिएगा। 20 तारीख को ये है महोत्सव, ये तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा इसमें। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार हमारे कृष्णा लाइव सेशन में आए हैं, कृपया आपका हाथ रेज कर सकते हैं। ओके, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णा लाइव फैमिली में। हमसे जुड़े रहिए, प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ योर प्रीचर्स। जो भी आपको आज इनवाइट किए हैं उनके साथ आप जुड़े रहिए। देयर बी लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, और जो सही मायने में लाइफ लीड करना है हमें जिस तरह से, वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ओके, अभी जो 20th पानीहाटी फेस्टिवल का काफ़ी हफ्तों से हम लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, और कृष्णा लाइफ इंफॉर्मेशन ग्रुप, वृंदावन इन्फो ग्रुप है, जिसमें सारी डिटेल्स हम लगातार लगा रहे हैं। क्या कोई है यहाँ पे जो उस ग्रुप में नहीं है, इन्फो ग्रुप में? क्या आप सब लोग उस ग्रुप में हैं, कृष्णा लाइफ इन्फो ग्रुप? या जो नहीं है तो कृपया हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। सो वी विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आपको सारी डिटेल्स, जो भी फेस्टिवल्स जब भी आएंगे, फेस्टिवल्स के बारे में, उसमें सेवा के बारे में, सारी चीज़ें हम आपको इन्फॉर्मेशन उसमें डालते रहेंगे, और यू कैन बी अपडेटेड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द टेम्पल। तो चिड़ा दही का जो है, आज हम पॉट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पीछे। तो जो भी उसको लेना चाहते हैं, वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स बैठे हैं। आपको कुछ डिटेल्स देने हैं, आपके नेम, केएल प्रीचर कौन है और कितने पॉट्स आपको चाहिए, वो सारी चीज़ आप डिटेल्स उनको दे के पॉट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और कल 2 बजे से पहले आप सबको जो भी आपका नाम दिया गया है उनको हम फ्लेवर्स अलॉट करेंगे। ये इसलिए क्योंकि ऑफकोर्स आप सोच सकते हैं कि अरे मुझे ये फ्लेवर करना चाहिए था, आपने ये फ्लेवर दे दिया। ये प्रोसीजर इसीलिए है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ गौर निताई को ऑफ़र करें। नहीं तो बहुत लोगों को मन में रहता है कि ये मैंगो सीज़न है, मुझे मैंगो करना है, मुझे मैंगो करना है। बट वी want to offer many varieties to गौर निताई, that is why we are allotting those flavors। और जो फ्लेवर्स हम अलॉट कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो हमारे पास उसका रेसिपीज़ भी है, कैसे करना है, प्रोसीजर भी है, तो उसी के हिसाब से आप देख के कर सकते हैं। कुछ वीडियोस मैंने शेयर किया है ग्रुप में, वो सैम्पल वीडियोस है। 2 वेराइटीज़ का है, एक तो मैंगो का है और एक ब्लैक करंट का है। वो बेसिक है, मतलब 2 वैरायटी है, एक में बेस होगा कंडेंस्ड मिल्क, एक वैरायटी में होगा कर्ड। तो दोनों का वैरायटी हमने शेयर किया है, वो आप फॉलो करिए। केवल आपको उसमें आपका फ्लेवर जो है उसे एंड में आपको वो फ्लेवर ऐड करना है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप आपके प्रीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे कुछ डायरेक्टली आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैसेज बेटर होगा, बिकॉज कॉल अगर मैं बिजी हूँ, नहीं ले पाई, तो आप मैसेज कर देंगे, तो जब भी मैं फ्री होंगी देख के आपको रिप्लाई कर दूंगी। किसी को कोई डाउट्स? ओके, तो आप प्लीज़ कृपया लाइन में एक लाइन करके आप लोग प्लीज़ कलेक्ट योर पॉट्स। थैंक यू। एक चीज़ और, प्रभुपाद जी का व्यास पूजा ऑफरिंग जो लिखना था आपको, आपके प्रीचर्स के थ्रू आपको लिंक मिले होंगे। कुछ लोग ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो कृपया आप लोग आपका ऑफरिंग्स उसमें सबमिट कर दीजिए। 24th इज़ द लास्ट डेट। और पानीहाटी के लिए 19th और 20th दोनों दिन सेवा की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप आपके नेम्स जो हैं आपके प्रीचर्स को दे सकते हैं जिस दिन आप अवेलेबल हैं, और जो समय आप करना चाहते हैं सेवा, आप प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करिए।
और हम आपको उसी के हिसाब से सर्विस अलॉटमेंट करेंगे. यू कैन प्लीज कम एंड डू सर्विसेज. हाँ, 19 को एक सेवा है जो मैंगो होता है. ऑफ कोर्स ये मैंगो सीजन है तो मैंगो हम भगवान को ऑफर करते हैं. सो इस फेस्टिवल में हम भगवान का जो ऑल्टर है वो पूरा हम मैंगो से सजाएंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वो मैंगो को सजाने के लिए उसे वायर में बांध के फिर हमको वहाँ पे जगह जगह लगाना पड़ता है. तो ये मैंगो वायरिंग सर्विस है 19th को, तो वो पूरा दिन सर्विस चलेगा. तो दैट सर्विस इज अवेलेबल, सो यू कैन प्लीज गिव योर नेम्स फॉर दैट. और 20th को भी 20th मॉर्निंग पेटल श्रेडिंग सर्विस. जो वहाँ पर हमारे मंदिर के आगे जो पॉन्ड है, कल्याणी हम जिसको बोलते हैं, तो उस पॉन्ड को हम लोग डेकोरेट करते हैं क्योंकि भगवान नीचे लेकर आएंगे, उनको नाव में बिठाएंगे, तो उस पानी में उनको लेके जाएंगे. तो उस पॉन्ड को डेकोरेट करने के लिए हमें काफ़ी सारे फ्लावर पेटल्स की ज़रूरत है. तो 20th को सुबह हम फ्लावर शेडिंग का सर्विस होगा, जहाँ पे आपको फ्लावर पेटल्स रिमूव करने होते हैं, वो वाले सर्विस होंगे. और शाम को फॉर चीड़ा दही जो कुछ वॉलंटियर्स हम वहाँ पर ज़्यादा नहीं, कुछ वॉलंटियर्स हम लेंगे ये पॉट्स रिसीव करने के लिए, उसको रखने के लिए, सजाने के लिए, वो सारी चीज़ें. तो ये चीज़ें होंगी. आप अपना नाम शेयर कर दीजिए आपके केएल प्रीचर्स को, तो हम उसके हिसाब से आपको अलॉट करेंगे. थैंक यू. कैन वी हैव प्रसादम प्रेयर्स? आज किसका नाम था? प्रसादम प्रेयर्स. आरती माता जी आपका था? पवित्रा माता जी. ओके, पवित्रा माता जी प्लीज बी सीटेड. आई विल आस्क समबडी एल्स. सुलोचना माता जी, कैन यू प्लीज डू? एनीबडी एल्स वांट टू डू प्रसादम प्रेयर्स? करना चाहते हैं? गोपाल प्रभु. अरे you want to do? Vidya Mata ji want to do? किसी ने अगर नाम नहीं लिखा है तो प्लीज लिख के आपका कूपन कलेक्ट कर लीजिए फॉर प्रसादम. हरे कृष्णा. महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्पुण्यवतम राजन विश्वस्य नैव जायते शरीर विद्याजाल जड़रेन्द्रियता हे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जिह्वा अति लोभ मैं सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जिह्वा जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सही अनामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.
सो 19th को सेवा मैंगो बाइंडिंग जो सेवा है, एवरीबडी कैन कम एंड डू, लेकिन आप पहले ही हमें सूचित कर दीजिए आप कितने टाइम आएंगे. वी रिक्वेस्ट यू दैट एटलीस्ट 2-3 आवर्स प्लीज कम फॉर दिस सर्विस. तो आपको 2-3 घंटे में लगभग 15-20 मैंगोस यू विल बी एबल टू डू द वायरिंग, बिकॉज उसके लिए थोड़ा स्किल चाहिए और बहुत सारे टाइम नहीं होगा, तो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. लेकिन ये सेवा करने से आप जो वायर से बांध के देंगे वो ऑल्टर में जाएगा और आपके हाथ के जो मैंगो बाइंडिंग हुआ था ऑल्टर में सजाया जाएगा. सो नो वील ऑल प्रोसीड फॉर. एक चीज़, जब आप चीड़ा दही बनाएंगे तो उसको हल्का सा लिक्विड ही रखिए, ज़्यादा उसको गाढ़ा मत करिए पहले से, क्योंकि वो जाते जाते अपने आप गाढ़ा हो ही जाता है. तो उसको जितना लिक्विडी कर सकते हैं आप उतना ही लिक्विडी करिए, ज़्यादा लिक्विडी करके रखिए. और जैसे मैंने पहले बोला था, उसे आपको लेकर आना है कोई भी अनयूज्ड बॉक्स में, मतलब वो बॉक्स नया होना चाहिए क्योंकि वो भगवान को ऑफर होगा. तो कोई भी यूज्ड बॉक्स में मत लेकर आइएगा. और आपके पॉट्स आप सब डेकोरेट करके लेके आइए. यहाँ पे हमारे पास जब आप जमा करेंगे तो आपके दिए हुए पॉट्स में हम उसको ट्रांसफ़र करके आपके बॉक्स आपको वापस कर देंगे. ठीक है, थैंक यू. हरे कृष्ण. और द पल्लकी टीम, द रेगुलर पल्लकी टीम, उनका सेवा रहेगा और शयना पल्लकी का सेवा रहेगा. So that regular teams will be there, and Raj, you can also come on 19th and do that mango binding seva. 20th also some seva you can do in the morning. और शाम दोपहर में आपका पल्लकी सेवा तो रहेगा, रेगुलर वन, गोपाल एंड ऑल. फिर शयना पल्लकी का तो वो पता नहीं क्या अरेंजमेंट है. तो अभी हम जाएंगे, शयनार्थी अटेंड करेंगे, शयना पल्लकी का आनंद लेंगे उत्सव का, फिर हम जाएंगे रेस्टोरेंट फॉर अवर prasadam. So we want 6 volunteers for prasadam serving. 6 volunteers for prasadam serving. 1, 2, 3, 4. Okay. Repeated. Cancelled. ठीक है. शर्मा जी भी repeated है. Raj, you can do. Raj Yadav ji can do. So Mataji's, Raj और पीछे. Yes. Lakhan can do. दीवान जी आप भी कर सकते हैं. हरे कृष्ण. So we'll all proceed. Make sure you written your name in the attendance and also taken your prasadam coupon. Hare Krishna.